Why Surah Nasr was revealed. یہ بات ہے قرآن کی۔ محمد شاید بھول گئے ہیں کہ ہم قریش ہیں۔ اپنے باپ داداؤں کے دین اور اپنے بتوں کی حفاظت کے لیے ہی یہ تلواریں اور یہ اوزار رکھتے ہیں۔ آنے دو ان لوگوں کو، دیکھتا ہوں کس طرح مکہ کو فتح کرتے ہیں۔ یہ مکہ ہے، مذاق نہیں۔ یہ بات ہے اس مقام کی جہاں اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا کہ شاید اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ اے لوگوں سنو، رسول اللہ اب نہیں رہے۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ آج کی ہماری نیو ویڈیو میں آپ لوگ کا بہت زیادہ ویلکم۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چلو چینل پہ نئے ہیں، جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل بٹن کو دبا کے آل پہ کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو پر ہم دیکھنے والے ہیں وائی سورہ نصر واز ریویل بائی ریلی مکتوب چینل کی ویڈیو سے، جو آج ہم دیکھنے والے ٹائم ویسٹ کیے بغیر میں کرنے لگی اپنی ویڈیو کو پلے۔ آپ لوگ کے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، زیادہ لوگوں تک شیئر سو کرتے ہیں اپنی ویڈیو سٹارٹ۔ یہ بات ہے قرآن کی۔ محمد شاید بھول گئے ہیں کہ ہم قریش ہیں۔ اپنے باپ داداؤں کے دین اور اپنے بتوں کی حفاظت کے لیے ہی یہ تلواریں اور یہ اوزار رکھتے ہیں۔ آنے دو ان لوگوں کو، دیکھتا ہوں کس طرح مکہ کو فتح کرتے ہیں۔ یہ مکہ ہے، مذاق نہیں۔ یہ بات ہے اس مقام کی جہاں اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا کہ شاید اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ اے لوگوں سنو، رسول اللہ اب نہیں رہے، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی وہ یہ سمجھ لے کہ آپ وفات پا چکے ہیں، لیکن جس نے اللہ کی عبادت کی وہ کان کھول کر سن لے کہ اللہ زندہ ہے اور اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ بات ہے اللہ کی مدد کی، یہ بات ہے سورہ نصر کی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ بچپن میں امی کی گود سے لے کر بڑھاپے کے شور تک سورہ نصر ہم سب کی زندگی کا بہت اہم حصہ رہی ہے، لیکن افسوس ہم میں سے بہت تھوڑے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ آخر سورہ نصر ہے کیا، اسلام میں وکٹری کا کانسیپٹ ہوتا کیا ہے۔ اس سورہ کا نام کیا ہے؟ یہ سورہ نصر ہے کیا امی؟ شاباش، چلو پڑھو۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب اللہ کی مدد آ پہنچے گی۔ کیا ہے سورہ نصر کے نازل ہونے کے پیچھے کا واقعہ، اور کس طرح یہ 1400 سال پرانی سورت آج کی جنریشن کو سکسیس، ایمبیشن اور جیت کا ایسا سبق سکھاتی ہے جو اس دنیا کے اصولوں سے بالکل الٹ ہے۔ ایک ایسی ڈیپ ہسٹری جس کو سمجھنے کے بعد کامیابی کو دیکھنے کا آپ کا نظریہ بالکل بدل جائے گا۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، 1400 سال پرانی اس سورت کا کیا کام ہے آج ہماری زندگی میں؟ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے اس ویڈیو میں۔ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ سورہ نصر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری مکمل سورہ۔ اس کے بعد آپ پر کچھ آیتیں ضرور نازل ہوئیں، لیکن کوئی کمپلیٹ سورہ نازل نہیں ہوئی۔ سورہ نصر کو لے کر اسکالرز کے بیچ 3 اوپینین ہیں، لیکن ان 3 اوپینین کو سمجھنے سے پہلے ایک ضروری بات، آپ لوگوں کی ریکویسٹ پر میں لے کر آ رہا ہوں 19 اپریل کو AI لائیو ماسٹر کلاس، جس میں خود پرسنلی آ کر میں آپ کو سکھاؤں گا کس طرح سے آپ ریلی مکتوب کی طرح سینیمیٹک ویڈیوز کو بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں یا جاب کرتے ہیں یا کوئی بزنس اونر ہیں یا ایک ہوم میکر ہیں تو یہ کلاس آپ لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اسٹوڈنٹس کو میں سکھاؤں گا کہ کس طرح سے وہ بغیر کسی ٹیوٹر کے کمپلیکس سے کمپلیکس چیزوں کو AI کی مدد سے پڑھ سکتے ہیں، اور جو ہوم میکرز ہیں وہ اس کلاس میں سیکھیں گی کہ کیسے دن کے کچھ گھنٹے لگا کر آپ یوٹیوب پر اپنی ایک پہچان بنا سکتی ہیں۔ کوئی کوکنگ چینل، اسلامک چینل، ہسٹری چینل، ڈاکیومنٹری چینل بنا کر اپنے کانٹینٹ کریشن کے سفر کو شروع کر سکتے ہیں۔ اس کلاس کو میں نے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ آپ ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ سے ہوں یا نان ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ سے ہوں، آپ سب اس کلاس کو جوائن کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ابھی جا کر اس ماسٹر کلاس کو جوائن کر لیجئے۔ آپ اس QR کوڈ کو اسکین کر کے ڈائریکٹلی ماسٹر کلاس کے پیج پر پہنچ سکتے ہیں۔ چلیے اب ہم سورہ نصر کو سمجھتے ہیں آسان طریقے سے۔ سورہ نصر کو لے کر اسکالرز کے بیچ 3 اوپینینز ہیں، یعنی 3 رائے ہیں۔ سب سے پہلی رائے یہ ہے کہ یہ سورت مدنی ہے،
मदीना में नादिल हुई और उस वक्त नादिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन में कामयाब हो गए और पूरे अरेबिया में इस्लाम फैल गया और आप 10,000 मुसलमानों के साथ मक्का में दाखिल हुए। ये हिजरत का 8वां साल और रमज़ान का 20वां दिन था जब अल्लाह ने गारे हिरा में इक़रा नाजिल की थी। उस दिन से आज तक तकरीबन 21 साल गुजर चुके थे और 10,000 सहाबा का एक अजीम लश्कर मक्का में दाखिल हो रहा था। अल-वाक़िदी, इमाम बैहक़ी, इब्न हिशाम के अकॉर्डिंग रसूलुल्लाह ने इस पूरे के पूरे लश्कर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था। सबसे पहला लश्कर मक्का के लोगों का था, मक्का के मुसलमानों का था। इस लश्कर को लीड कर रहे थे खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बेफिक्र होकर आगे बढ़ो। दूसरा लश्कर मदीना वालों का था जिसको ज़ुबैर इब्न अव्वाम लीड कर रहे थे। ऐसा लगता है जैसे रसूल अल्लाह की आखिरी मंजिल तय हो गई है। अल्लाह अकबर। बेशक आज हक ने बातिल पर जीत हासिल कर ली है। यकीनन ये हक की जीत है। सब अल्लाह का करम है। अल्लाह अकबर। और तीसरे लश्कर में पूरे अरेबिया में फैले हुए वो छोटे छोटे कबीले, वो छोटी छोटी ट्राइब्स थीं जो लोग ईमान ला चुके थे, इस्लाम ला चुके थे। इस लश्कर को लीड कर रहे थे अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अबू उबैदा के लश्कर में जो लोग पैदल हैं वे चट्टानों के किनारे से होकर निकल जाएं। घोड़ों के लिए रास्ता खाली कर दें। कुरैश, अपने घरों के दरवाजे बंद कर लो। मुसलमान मक्का में दाखिल हो चुके हैं। इतने बड़े लश्कर को देखकर मक्का के लोग अपने घरों में छुप गए। औरतों ने बच्चों को समेट लिया, बूढ़ों ने दरवाजे पर कुंडियां चढ़ा दी और जवान हैरत से खिड़कियों से झांकने लगे। वो देखो, मुसलमान हमारे खुदाओं को तोड़ रहे हैं। सारी कायनात बनाने वाला अल्लाह एक है, उसकी कोई औलाद नहीं, न वो किसी की औलाद है। इन्होंने हमारे खुदाओं का क्या हाल किया है? तुम अब भी इन्हें खुदा मानते हो? ये वही लोग थे जिन्होंने तपते हुए रेत पर मुसलमानों के सीनों पर आग रखी। आज इन्हें लग रहा था कि इनकी मौत तय है। जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लोगों ने रात के अंधेरे में अपनी बेटी, अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, आज वही रसूलुल्लाह दिन के उजाले में एक सैलाब की तरह मक्का में दाखिल हो रहे थे। मगर जहां मुसलमान खुशी मना रहे थे, झंडे लेकर मक्का के अंदर दाखिल हो रहे थे, हर जबान पे अल्लाह अकबर हो रही थी, वहीं बहुत सारे लोग हिस्ट्री में होने वाला एक अजीब मंजर अपनी आंखों से विटनेस कर रहे थे। इतनी बड़ी फतेह, इतनी बड़ी जीत, इतना बड़ा कारनामा कि जिसकी मिसाल हमें पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं मिलती। एक ऐसा रेवोल्यूशन, एक ऐसा कारनामा जो बड़े बड़े राजा महाराजा पूरी फौज के साथ सदियों में नहीं कर पाए। वो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ और सिर्फ 21-22 सालों के अंदर कर दिखाया था। पूरे अरेबिया के अंदर इस्लाम फैल चुका था। लोग बच्चों का कत्लेआम नहीं कर रहे थे। हर इंसान एक दूसरे को बराबर समझ रहा था। और इस नाकाबिले एतबार फतेह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बादशाह की तरह चौड़े होकर नहीं बैठे थे, बल्कि बड़ी आजिज़ी के साथ ऊँट पर इस तरह झुक कर बैठे थे, जैसे कोई बादशाह नहीं, कोई अदना सा गुलाम। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ीतोया पहुँचे। इस दौरान आपने अपना सर झुका रखा था, यहाँ तक कि दाढ़ी के बाल कजावे की लकड़ी से जा लग रहे थे। इस्लामिक ट्रेडिशन की ऑलमोस्ट हर किताब में ये बात मेंशन है कि रसूलुल्लाह इस तरह झुक के बैठे थे और बार बार अपने लब मुबारक से सूरह नस्र को पढ़ते चले जाते और कहते चले जाते कि ये अल्लाह की जीत है, उसकी मदद के बगैर ये कुछ भी मुमकिन ना था। ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की जीत है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की मदद है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की मदद है। मक्का में दाखिल होने के बाद रसूलुल्लाह अपनी ऊँटनी पर बैठे। आपने काबा का 7 बार तवाफ़ किया और हर तवाफ़ के बाद आप अपनी छड़ी से बुतों को तोड़ते चले जाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते चले जाते। तवाफ़ के बाद आप काबा के दरवाज़े पर खड़े हुए और फिर आपने एक निगाह उस इंसानों के सैलाब पर डाली। 10,000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ मौजूद थे। हर निगाह रसूलुल्लाह के चेहरे मुबारक की तरफ उठी हुई थी। हर लब पर मुस्कुराहट थी और इंसानों के सैलाब के बीच इंतज़ार का सन्नाटा फैला हुआ था। लोग अपनी सांसें थामे खड़े थे।
نبی پاک نے مکہ کے ظالموں کی طرف دیکھا اور پھر آپ نے بڑے ہی نرم انداز میں پوچھا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ قریش کے سرداروں نے سر جھکا کر کانپتی ہوئی آواز میں کہا، آپ ایک نیک انسان ہیں، ایک نیک بھائی ہیں اور ایک باعزت خاندان کے بیٹے ہیں، اس لیے ہمیں آپ سے صرف بھلائی کی ہی امید ہے۔ اور تب رسول اللہ نے وہ لفظ کہے جو تاریخ کے پنوں میں ہمیشہ کے لیے درج ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ آج میں تم سے وہی کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سبحان اللہ، رسول اللہ نے تو آپ کمال نے ہی تو کر ایک ہی لمحے میں دلوں کی ساری نفرت مٹا دی۔ عجیب بات ہے، اتنے سالوں کی دشمنی کیا سچ میں یوں ہی ختم ہو جائے گی؟ کیا واقعی سب کچھ یہیں ختم ہو جائے گا؟ بالکل، رسول اللہ نے بس ایک لمحے میں سالوں کی تکلیف، سالوں کا ظلم، سالوں کی نفرت کو مٹا کر رکھ دیا، ختم کر دیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ آپ واقعی انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اور کیونکہ رسول اللہ کی مبارک لبوں پر مکہ میں داخل ہوتے وقت سورہ نصر کی آیتیں تھیں، تو لوگوں کے بیچ یہ انڈرسٹینڈنگ بن گئی کہ یہ صورت مدنی ہے اور یہ صورت فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ پر جیسا میں نے آپ سے کہا کہ اس صورت کو لے کر 3 رائے ہیں۔ پہلا اوپینین میں نے آپ کو بتا دیا ہے، دوسرا اوپینین یہ ہے کہ یہ صورت ہے تو مدنی، لیکن یہ فتح مکہ کے وقت نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ لبیک اللہم لبیک۔ یہ ہجرت کا 10واں سال تھا۔ عرفات کے میدان میں تقریباً 1,24,000 سے زیادہ مسلمان آپ کے ساتھ حج میں شامل تھے۔ لبیک لا شریک لک۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے تاکہ سب لوگ آپ کو دیکھ سکیں، اور پھر آپ نے کہا کہ اے لوگوں میری بات غور سے سنو، شاید ہی ممکن ہے کہ اس سال کے بعد دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے۔ حضور نے ایسا کیوں کیا یہ کسی بڑی بات کا اشارہ ہے؟ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگوں کسی کا دل نہ دکھاؤ، نہ کسی مظلوم کا مال کھاؤ، اور جو غریب ہیں انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، اور بیعت سے دور رہو، اور یاد رکھو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور ایک دوسرے کی جان مال اور عزت کی حفاظت کرو۔ اور پھر آپ کی آواز میں ایک درد امر پڑا اور آپ نے کہا کہ عورتوں کے معاملے میں نرم رہو اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے اللہ کا نام لے کر انہیں اپنے لیے حلال کیا ہے، تو ان کا حق نہ کھاؤ، ان پر ظلم نہ ڈھاؤ، اور عورتوں پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ وفا کریں، اور دیکھو کہ بھٹک نہ جانا، میں تمہارے لیے اللہ کی رسی کو چھوڑے چلے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہے تو دیکھنا کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ان سارے لوگوں سے پوچھا کہ ایک روز تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، بتاؤ کہ تم کیا جواب دو گے؟ وہ ساری آوازیں، وہ سارا سمندر انسانوں کا ایک ساتھ بول پڑا، یا رسول اللہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، شہادت کی انگلی اٹھائی اور 3 بار کہا کہ اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ لبیک اللہم لبیک۔ اور پھر اس خطبے کے بعد یا پھر اس خطبے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نصر کو ریسائٹ کیا، اور تقریباً حجۃ الوداع کے 50 یا 80 دن کے بعد آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور پھر ایک یہ اور انڈرسٹینڈنگ بنی کہ یہ صورت مدنی ہے لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ ایک اور اوپینین ہمیں ملتا ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ صورت مدنی نہیں ہے بلکہ یہ صورت مکی ہے، مکہ میں اس دور میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے اوپر قریش بے انتہا ظلم کر رہے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو چپ کے اپنے اللہ سے دعا کیا کرتے، اپنے اللہ کو بتایا کرتے کیسے قریش کے سردار آپ کے خلاف چال چل رہے ہیں، کیسے طائف والوں نے آپ پر پتھر برسائے ہیں، اور کیسے آپ کا اپنا چچا ابو لہب سرعام آپ کو برا بھلا کہتا ہے۔ ارے مکہ والو، میرے بھتیجا دیوانہ ہو گیا ہے، دیوانہ، اس کی بات مت سننا۔ اور تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کنسول کرنے کے لیے
तसल्ली देने के लिए सूरह नस्र को नादिल किया और आपको बताया, आपको यकीन दिलाया कि आप फ़िक्र नहीं कीजिए या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जीत आपकी ही होगी और एक दिन आप अपनी आंखों से विटनेस करेंगे दीन में लोगों को दाखिल होते हुए, इक्का दुक्का नहीं बल्कि झुंड के झुंड दाखिल हो रहे होंगे। और यही वजह थी कि जब आप 1,24,000 मुसलमानों के साथ मक्का में दाखिल हो रहे थे, तब आपके लबों पर सूरह नस्र की आयतें थीं, जैसे आप अपने आप को याद दिला रहे हों कि वाकई अल्लाह का वादा सच्चा है, जो वादा उसने मुझसे कई साल पहले किया था आज उसे पूरा कर दिखाया, और ये सिर्फ़ और सिर्फ उसकी मदद की वजह से। इस आखिरी मदनी के सिलसिले में मेरा इख्तिलाफ है। मेरे नज़दीक सूरतुल नस्र भी मक्की है, सूरतुल लहब भी मक्की है, सूरतुल इखलास भी मक्की है, सिर्फ 2 सूरतें मुअव्वज़तैन मदनी हैं। वल्लाहु आलम। तो मैंने तीनों ओपिनियन आपके पास रख दिए, आपके सामने रख दिए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ख़ुद अपनी स्टडी करें, थोड़ा समझें और अपनी एक राय बनाएं। और इसी वजह से मैं सारी किताबें हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे ऐड कर देता हूँ। देखिए, जब भी आप कुरान की बात किसी से सुने ना, तो इस मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात बरता कीजिए। आंखें बंद करके यूँ भरोसा ना कर लिया कीजिए, बल्कि उसको वेरीफाई किया कीजिए, ख़ुद ब खुद जाकर तहक़ीक़ किया कीजिए। और इसी तहक़ीक़ की वजह से आज से 6 महीने पहले मैंने एक छोटा सा मिशन ख्वाब देखा कि मैं कुरान की आखिरी 10 सूरतों को समझूं और लोगों को समझाऊं इस अंदाज में, इतने आसान तरीक़े से कि उन सब के अंदर एक शौक़ पैदा हो, एक डिजिटल लाइब्रेरी बने ताकि आगे आने वाली नस्लें उसको पढ़ सकें, इससे फ़ायदा उठा सकें। और अल्लाह का करम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरा आज वो मिशन पूरा कर दिया। आज ये मैं कुरान की आखिरी 10वीं सूरत आपको समझा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी, तकरीबन 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इन वीडियोस को देखा है। 57 लाख घंटे लोगों ने कुरान को समझने में लगाए हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह इस मिशन के ख़त्म होने पर मैंने 2 और ख्वाब देखे हैं। सबसे पहला मेरा ख्वाब ये है कि मैं कुरान को मुकम्मल इसी तरीके से समझूं और समझाऊं। दूसरा मेरा ख्वाब ये है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हुनर मुझे सिखाया है ना, मैं वो आप लोगों को भी सिखाऊं। यकीन जानिए कि अगर आपको AI का सही इस्तेमाल करना आ गया तो आप भी अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दुनिया के सामने करोड़ों लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुँचा सकते हैं, दीन के लिए, अपने माशरे के लिए, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है सही नीयत की, और सही नीयत के साथ सही स्किल्स की। इसीलिए मैंने 2.5 घंटे की एक मास्टर क्लास डिज़ाइन की है। तो अभी जाकर इस मास्टर क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। आप इस QR कोड को स्कैन करके डायरेक्टली मास्टर क्लास के पेज पर पहुंच सकते हैं। चलिए अब हम सूरह नस्र को समझते हैं आसान तरीके से, सिनेमैटिक अंदाज में। तो पहली आयत क्या है? इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, तो जब आ जाएगी अल्लाह की मदद और फतह हासिल हो जाएगी। इज़ा का मतलब होता है जब, यानी व्हेन, और जा यानी आ चुकी या आ जाएगी। ये दोनों लफ्ज़ असल में फ्यूचर में होने वाली बात की 100% गारंटी दे रहे हैं कि जब आ जाएगी, फ्यूचर में आ जाएगी। भाई क्या आ जाएगी? नस्र आ जाएगी। नस्र क्या होता है? नस्र यानी हेल्प, मदद। अब ये कोई आम मदद नहीं है कि किसी से पानी मांग लिया, आप मुझे एक गिलास पानी दे देंगे। ना 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 ना, ये वो मदद है कि आपकी मौत और ज़िंदगी की बनी हुई है, और अगर इस वक्त ये मदद नहीं मिली तो शायद आपका बचना मुश्किल है, शायद आप बच नहीं पाएंगे। ये उस लेवल की मदद है। ठीक, तो क्या कहा जा रहा है? इज़ा जाअ नस्र, कि जब आ जाएगी मदद। किसकी मदद आ जाएगी? नस्रुल्लाहि, अल्लाह की मदद आ जाएगी। वल फतह, वाव यानी और। तो जब मदद आ जाएगी तो क्या होगा? तब आपको फतह हासिल होगी, विक्ट्री हासिल होगी, जीत हासिल होगी। अब दूसरी आयत, वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, तब आप लोगों को अल्लाह के दीन में दाखिल होते हुए देखेंगे झुंड की झुंड में, यानी फौज दर फौज। लेकिन अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अराइता का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? अल्लाह चाहते तो सूरह फील की तरह अलम तरा भी यूज़ कर सकते थे। और जैसा मैं सूरह माऊन में पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अराइता जब इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि अब आप उस चीज़ को फिज़िकली देखेंगे, अपनी आँखों से देखेंगे। क्या देखेंगे? नास को देखेंगे, लोगों को देखेंगे। अब लोग क्या कर रहे होंगे? यदखुलूना, वो दाखिल हो रहे होंगे, एंटर हो रहे होंगे। कहाँ एंटर हो रहे होंगे? अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे होंगे। अफवाज यानी बहुत सारे लोग। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं होगा कि इक्का दुक्का लोग दाखिल हो रहे होंगे, बल्कि फ़ौज की फ़ौज दाखिल हो रही होगी। या रसूल अल्लाह, हम अब्दुल कैस कबीले के लोग हैं और हमारा कबीला
इस्लाम के साए में आना चाहता है। हम नजरान के ईसाई हैं और आपका दीन कबूल करना चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ एक सोचने वाली बात है, और वो सोचने वाली बात ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये क्यों कहा कि दीन में दाखिल हो रहे होंगे, ये क्यों नहीं कहा कि ईमान में दाखिल हो रहे होंगे। दीन जो होता है ना, आपने मुंह से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप दीन में दाखिल हो गए। लेकिन ईमान जो होता है ना, वो दिल के अंदर होता है। हो सकता है आप ज़बान से मुसलमान हों, दीन में दाखिल हों, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप ईमान वाले भी हों। हालांकि जब हम सहाबा की ज़िंदगी को देखते हैं तब हमें बिल्कुल उल्टा नज़र आता है। सहाबा के अंदर पहले ईमान पैदा हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि भाई हम मुसलमान हैं, हम दीन में दाखिल होते हैं। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत के अंदर दीन के लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। अल्लामा इकबाल का एक बड़ा मशहूर शेर है कि रस्म अज़ां तो रह गई, रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया, तलकीन गज़ाली न रही। यानी हर मोहल्ले में अज़ान हो रही है और अज़ान दी जा रही है, लेकिन बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी अज़ान थोड़ी है, ना वैसा ईमान है। और आप जाएं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए, बहुत सारे लोग एक से एक फ़लसफ़ा आपको बयान कर देंगे, बेटे ऐसे पढ़ा करो, बेटे टोपी नहीं लगाई, बेटे टांगे इतनी खुली होनी चाहिए, बेटे पैर सीधे होने चाहिए। लेकिन गज़ाली रहीमुल्लाह जैसी अंडरस्टैंडिंग और वैसी नॉलेज तो किसी के पास भी नहीं है। फ़लसफ़े तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं। ठीक, आयत नंबर 3, फ़सब्बी बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा। तो तस्बीह कीजिए हम्द के साथ अपने रब की और उससे मग़फ़िरत मांगिए, बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है। अब यहाँ पर जो फ़सब्बी बिहम्दि का लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, इसका मतलब होता है तस्बीह कीजिए और तारीफ़ कीजिए। अरे भाई किसकी तारीफ़ करनी है, तो उसके लिए रब्बी का यानी रब की तारीफ़ कीजिए, वस्तग़फ़िर और इस्तग़फ़ार कीजिए यानी माफ़ी मांगिए, मग़फ़िरत मांगिए। इन्नहु कान तव्वाबा, बेशक अल्लाह तव्वाब है। तव्वाब अल्लाह का एक नाम है। इमाम गज़ाली रहीमुल्लाह अपनी किताब में मेंशन करते हैं कि तव्वाब वो है जो लगातार इंसान की गलतियों को, भूल चूक को माफ़ करता रहता है। और ये माफ़ी लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये अनलिमिटेड है। आप एक गलती को 1000 बार करें, करोड़ों बार करें, तब भी आपको नाउम्मीद नहीं होना है, क्योंकि वो अल्लाह अत-तव्वाब है, लगातार माफ़ करने वाला है। लेकिन अब यहाँ भी एक बड़ी हैरानी की बात है भाई, इतनी बड़ी जीत हुई है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन में कामयाब हुए हैं। अरे भाई ये तो जीत का मौका है, कोई ज़रा मिठाई लाए, पेड़े लाए, कोई गले में मालाएं डाले, कोई फूल वूल चढ़ाए, ज़रा चौड़ा होकर बैठा जाए और बताया जाए कि भाई आज जो है कुछ करा है हमने। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है, माफ़ी मांगिए, जबकि हम जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कि नबी बड़े मासूम होते हैं। पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए ये जो आयत है ना, ये असल में प्रोफेटिक बिहेवियर का यानी रसूल अल्लाह के किरदार का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इस बात को ऐसे समझिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक इंसिडेंट हमें मिलता है कि आप कुरैश के सरदारों के साथ बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, तभी अचानक से एक सहाबी जो देख नहीं सकते थे, नाबीना थे, अब्दुल्ला इब्न मख्तूम आपके पास आए और कुरान की किसी आयत को समझाने की रिक्वेस्ट करने लगे। अब क्योंकि एक बहुत ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट चल रहा था, रसूल अल्लाह को लग रहा था कि शायद ये सरदार ईमान ले आए तो मुसलमानों को कुछ सपोर्ट मिल जाए, तो आपने बड़े नर्म अंदाज में उन्हें थोड़ा सा इग्नोर कर दिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह नाजिल करी और आप से कहा कि ए नबी, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने त्योरी चढ़ाई और मुंह फेर लिया कि उनके पास एक नाबीना आया, और तुमको क्या खबर, शायद वो पाकीज़गी हासिल करता। अब वो जो परवाह नहीं करता, सो उसकी तरफ तो तुम तवज्जो करते हो, और वो जो तुम्हारे पास दौड़ता हुआ आया और वो अल्लाह से डरता भी है, तो उससे तुम बेरुखी करते हो। देखो ये कुरान नसीहत है। इस दर्जे में अगर कहीं कोई आपको महसूस हुआ है अपने एहसास की शिद्दत की वजह से कि कोई कोताही रह गई है आपकी इबादत में, अल्लाह ताला तौबा का कबूल फरमाने वाला, अल्लाह ताला अपनी शफ़क़त और इनायतों को असरे नौ मबदूल करवाने वाला है, ये उसकी शान है। इस पूरी आयत में क्या बात हो रही है, जल्दी से समझते हैं। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़थ, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह की वो मदद आ जाए जिसकी कोशिश में आप लगातार इतने सालों से लगे हुए थे, और आप अपनी आंखों से विटनेस करें कि आप जीत चुके हैं, आप देखें कि लोग फौज की तरह दीन में दाखिल हो रहे हैं, उस लम्हे अपने रब की इबादत कीजिएगा, उसकी पाकी को बयान कीजिएगा और इस्तग़फ़ार कीजिएगा, क्योंकि वो अत-तव्वाब है, बार बार माफ़ करने वाला है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़थ,
वरायत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। आप समझते हैं कि इस सूरत का आज हमारी ज़िंदगी में क्या रेलेवेंस है कि ज़िंदगी में जब आपको कोई कामयाबी मिल जाए तो अपना सीना मत फुलाइए, अपने आप को बहुत बड़ा मत समझिए, बल्कि बहुत ज़्यादा हम्बल हो जाइए। अच्छा समझदार इंसान वो होता है जो बहुत ज़्यादा कामयाब होने पर भी बहुत ज़्यादा हम्बल होता है, क्योंकि वही समझता है, वही जानता है, वही महसूस करता है कि जो कामयाबी उसे मिल रही है ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ही वजह से है। और जब हमारा ये एटीट्यूड होगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी ना, तब फिर कोई गाड़ी वाला अपनी मर्सिडीज़ पर स्क्रैच आने पर किसी गरीब का खून नहीं कर देगा। फिर कोई भी आदमी अच्छी पढ़ाई हासिल करने के बाद लाखों करोड़ों का जहेज़ नहीं मांगेगा। फिर कोई बेटा अपनी माँ को कामयाब होने के बाद धक्के देकर बाहर नहीं निकालेगा। प्रोफेसर संदीप नथवानी ने अपनी बीमार मां को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, बात समझ आई होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बेइंतहा शुक्र है कि उसने सफ़र को मेरे लिए आसान किया, और बहुत ज़्यादा शुक्रिया उन सब लोगों का जो मुझे कम्युनिटी मेंबर बनकर सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस मिशन को और आगे लेकर जाऊं, और बेहतर और बढ़िया और जल्दी वीडियोस बनाऊं, तो इस QR कोड को स्कैन करके सपोर्ट कीजिए। और अगर आज दुनिया का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन यानी AI को आप सीखना चाहते हैं तो आप reallymaktoob.com पर जाकर मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड किया हुआ है। याद रखिए, वी आर द बिल्डर्स ऑफ द आर्ट। जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने वाइस सूरह नस्र वाइस रिवील क्यों हुई थी और उसके पीछे क्या स्टोरी थी, वो सारी स्टोरी जानी, और इसके पीछे आज की ज़िंदगी पे हमारी कैसे रिलेट करते हैं, हम क्या इससे सीख सकते हैं। इन्होंने बहुत सही बात की कि आज हम कोई भी चीज़ हासिल करते हैं ना, कोई भी मुकाम हासिल करते हैं, तो हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया, और हम अपने बाकी सबको अपने से कमतर समझने लग जाते हैं। अगर कोई मुकाम हासिल कर या फिर किसी चीज़ में कामयाबी हासिल कर लिया, कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए, कुछ भी हासिल कर लिया, आज अब चंद पैसे भी आते हैं तो हम अपने आप को इतना कुछ समझते हैं कि बाकी सब हम आपको अपने सामने हकीर समझते हैं, कि जिस तरह वो इंसान मैटर ही नहीं करता, उसके पास कुछ है नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और हम बात, पता है, जब हम इस लेवल पर तो हम बात किससे करते हैं, जो हमारे लेवल के, हम जिन्हें अपने लेवल का समझते हैं कि इस बंदे के पास कुछ है तो हम इसी से बात करेंगे, हम इससे नहीं करेंगे जिसके पास कुछ नहीं है। तो ये चीज़ है कि इंसान को अपने अंदर आजिज़ी रखनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को देखा, जो उन्होंने कितना पूरा मक्का मदीना फतह कर लिया, इस्लाम को फैलाया, तो उस टाइम जो सब लोग उनके सामने झुकते थे और किस तरीके से करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं अपने आप को बहुत कुछ समझता हूँ या फिर ऐसे। वो हमेशा सर झुका के चलते थे और हमेशा डाउन टू अर्थ रहते थे। कभी किसी के साथ सख्त लहजे में उन्होंने बात नहीं की। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की लाइफ के बारे में बात की जाए तो लोग समझते थे अरब का खलीफा आ रहा है, जेरूसलम वाले भी समझते थे अरब का खलीफा आ रहा है, तो उसकी एक पर्सनालिटी होगी, एक रोब होगा। जब देखा तो वो कहते इतने डाउन टू अर्थ इंसान। तो ये इंसान को पर्सनालिटी में एक ये चीज़ रखनी चाहिए कि इंसान ज़िंदगी में कोई भी मुकाम हासिल कर ले, चाहे बड़े से बड़ा बिजनेस भी खड़ा कर ले, एम्पायर खड़ा करे, लेकिन हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। चंद थोड़ी सी तलीम हासिल करके हम अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल रहे हैं। आज हम जायदाद वगैरह जब डिवाइड करते हैं, प्रॉपर्टीज़ डिवाइड करते हैं, साथ माँ बाप को भी डिवाइड कर लेते हैं। बाप मेरे पास रहेगा और माँ तुम्हारे पास रहेगी। आज हम ये कर रहे हैं, ये हमारी ज़िंदगी की रियलिटी। इस तरीके से उस प्रोफेसर ने अपनी माँ को जो उनसे 7वें कितने फ्लोर से उसने गिरा फेंक दिया नीचे, कि मतलब उसको वो एक एजुकेटेड इंसान, आप अगर एजुकेटेड हो, आपको नॉलेज है, तो मतलब क्या आपकी एजुकेशन आपको ये सिखा रही है? एजुकेशन तो इंसान को जो ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाती है, इंसान को सही गलत की पहचान सिखाती है। लेकिन अगर एजुकेशन इंसान को ये सिखाती है ना कि वो माँ बाप जिन्होंने सारी ज़िंदगी आप पे लगा दी, जिन्होंने हर अपनी रातों का सुकून, अपनी रातों की तकलीफ़, अपनी बीमारियाँ सब भूल के आपके ऊपर सारी ज़िंदगी अपनी लगा दी, तो आप उनके साथ ये सलूक करो, उन्हें घर से बाहर निकाल दो, उनके प्रॉपर्टीज़ की तरह उन्हें डिवाइड कर लो, या फिर उनको फ्लोर्स से, अपने घरों के जो सबसे ऊंचा फ्लोर है उस फ्लोर से उन्हें धक्का दे दो। अगर एजुकेशन ये सिखाती तो इंसान को एजुकेशन हासिल नहीं करनी चाहिए। जो आपको इंसान नहीं बना सकती उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ज़िंदगी में कोशिश करें कि हर किसी के साथ अच्छा सलूक करें। माँ बाप के हकूक़ बहुत होते हैं, हम चाह के भी अदा नहीं कर सकते। एजुकेशन हासिल करके अगर हम जहेज़ लेते हैं ना, तो उसमें भी हमने कोई कामयाबी हासिल नहीं कर ली। एक जहेज़ का मतलब क्या होता है? कीमत लगाना। क्या मतलब हम लोगों ने आज के टाइम पे हमने हर वो चीज़ अपने खड़ी की हुई है अपने सामने, और अपने लोगों में वो चीज़ सेट की हुई है, वो माशरा सेट किया हुआ है जिसमें हमें लगता है कि ये होना तो बहुत ज़रूरी है।
آج اگر ہم کو آج کا ٹائم وہ ہے جس میں ہمیں چاہیے خود چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو ختم کریں اور ایک پازیٹیو سائڈ میں آئیں. زندگی بہت چھوٹی ہے. یہ پیسے پراپرٹیز ہر چیز یہیں رہ جانی, کچھ ساتھ نہیں جانا. ساتھ صرف ہمارا اعمال جانا ہے, ہم نے کس کے ساتھ کیا سلوک کیا, کس کے اوپر کتنا ظلم کیا. جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے, اس کے ماں باپ کتنی مشکلوں سے وہ شادی کرتے ہیں. اس کے اوپر ہم لوگ جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. جہیز کے اوپر ہم لوگ کہتے ہیں ایک کار بھی ہونی چاہیے. پھر ہم کہتے ہیں ماں باپ کو گولڈ بھی ڈالنا چاہیے. کہ اتنی ڈیمانڈس کرتے ہیں, غریب ماں باپ کیسے اتنا پورا کریں. کوشش کریں اپنی لائف کو ایسا بنائیں کہ جو اللہ نے کہا ہے اس راستے میں چل سکے ہم. اللہ نے جو ہمیں اسلام دکھایا ہے کہ اسلام کا مطلب یہ ہے, ہم اس اسلام کو سمجھ سکیں. دنیاوی تعلیم حاصل کریں نہ کریں, دین کی تعلیم حاصل کریں, شاید وہی ہمیں انسان بنا دے. جو تعلیم ہمیں انسان نہیں بنا سکتی, ہمیں انسانیت میں فرق نہیں سکھا سکتی نا, اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کرنا, شیئر کرنا, چینل کو سبسکرائب کرنا. اپنا خیال رکھیے گا. ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو. تب تک کے لیے بائے بائے, اللہ حافظ.